So hi guys, we'll be starting with international environment law. We'll be discussing about specificity of issues which is relevant for the CLAT PG, CLAT PG exam plus law optional only. We will not rule into the concept of environment which is required in UPSC prelims exam as well. Right? We'll not try to do that, but with this we'll try to include, or I'll try to explain what are the core concepts of common but differentiated responsibility under Paris Agreement, or how international environment law has evolved in the past 15 to 20 years. To understand international environment law, firstly we need to understand a few things. For international environment law, few things are very much required to be elaborated. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में फ़र्क क्या होता है? कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, कन्वेंशन एक वेग या लार्जर कॉन्सेप्ट के लिए होती है. कन्वेंशन के अंतर्गत एक प्रोटोकॉल आती है जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हो सकती है, या स्पेसिफिक पॉइंट या इशू, पॉइंट या इशू के लिए हो सकती है. राइट, सो दैट इज़ वन थिंग. देन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइनिंग एज वेल एज रेटिफिकेशन. साइनिंग प्लस ratification. Signing is only expression of intent. Expression to intent. And ratification is actually agreeing and making the convention binding. Binding हो जाता है ratification करने के बाद. Right? So these were a few important prospects which we needed to understand. Then we have to understand what is the difference of global south and global north. Global south and global north. To understand international environment law, it is very important to clear these concepts. For me it is a concept only. ग्लोबल साउथ आप सुनने में लगेगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आइडियली इंटरनेशनल डायस्पोरा ने ये डिवीज़न क्रिएट कर दिया है कि नॉर्थ कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप्ड है. डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज जल्दी आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी आ गई थी. So these are a few reasons why global north is known as global north. Why they say that America is the greatest country in the world. Why the per capita living and standard of living is much better in UK or in European countries, because they are developed. The society is more developed, right? Then we come to global south. The issue of colonialism will come into play here. Colonialism will come into play here. Apart from that, the issues pertaining to lack of proper industries around mid 2000s will come into play, because now the development of industries is very fast, which is eventually becoming a reason for climate change. And of course, but ग्लोबल नॉर्थ ने तो ऑलरेडी इतना यूज़ कर लिया एनवायरनमेंट को कि एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी
हैम्पर हो गई है, कैरिंग कैपेसिटी इज ऑलरेडी हैम्पर्ड, राइट. सो द आर्ग्यूमेंट ऑफ ग्लोबल साउथ हियर इज, global south argument here is there should be a CBDR, common but differentiated responsibility. So they are saying that north should be more responsible and south should be more into development, because the standard of living or the per capita income is very less. That is the issue of CBDR, राइट. तो इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए बहुत चीज़ें हुई. UNEP बनाया गया, UNEP, ठीक है. उसके बाद 1972 में UNEP को बनाया गया था, बट जो बना था पोस्ट और अराउंड द स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, समिट और कन्वेंशन, वॉट एवर यू से, समिट इज़ अ बेटर वे टू फ्रेम इट, राइट. जिसमें 3 प्रिंसिपल्स की बात करी थी स्टॉकहोम में, और ये हुआ था 5 जून को. 5 जून को इसी को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे कहते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट डे, राइट. तो प्रिंसिपल्स यहाँ पे 3 हुए थे. वन इज़ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, वन इज़ पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, एंड द अदर वन इज़ इन रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है. तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे. ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको समझा दी. अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट्स पर. कॉन्सेप्ट्स क्या मतलब, जो हमें जिस हिसाब से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, ये देखिए आप. डिस्कस द रोल ऑफ UN इन प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट. मेंबर स्टेट्स ऑफ UN नीड टू टेक एप्रोप्रिएट एक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है. अब इन क्वेश्चन में ना आपकी कोर नॉलेज तो अभी मैं बता ही दूंगा, but integration of current affairs is the key. So international environment law seeks to mitigate and minimize the adverse impacts of anthropogenic activities on the environment and the ecosystem through agreed rules and mechanisms. Traditional view क्या है? A state is only responsible for the damages which can be clearly attributed to its own lawful actions, ठीक है. मॉडर्न व्यू क्या है? मूव फ्रॉम स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ब्रॉडर ड्यूटी टू मिटिगेट, ठीक है. देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये भी आता है, यहाँ पे ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में, ठीक है. एक कहता है कि मिटिगेट करेंगे और एक कहता है कि अडेप्ट करना है, ठीक है. अडेप्ट क्यों करें? ग्लोबल नॉर्थ ने तो ऑलरेडी, ग्लोबल नॉर्थ का आर्गुमेंट ये है कि हम अडेप्शन में जाना चाहिए. अडेप्ट क्यों करें भाई? तुमने तो ऑलरेडी इतना सारा यूज़ कर लिया है ऑलरेडी, द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट. सो व्हाई डू यू वांट अस टू अडेप्ट नाउ? या तो पहले अडेप्ट करते जब तुम इतना यूज़ कर रहे थे एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज को. ग्लोबल साउथ का आर्गुमेंट आता है टू मिटिगेट, ठीक है. मिटिगेट किस तरीके से करना है उस इशू पे हम बात करते हैं सिर्फ. इंटरनेशनल फोरम्स में भी जब भी मीटिंग्स होती हैं, जो कॉप की मीटिंग होती है, वहाँ पे भी इस विषय में बहुत बात होती है, राइट. ह्यूमन राइट्स एंड द एनवायरनमेंट, प्रीएम्बल टू द स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस जो मैंने बताया 1972 में हुई थी, नोटेड दैट एनवायरनमेंट इज एसेंशियल टू द एंजॉयमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स. कोर प्रिंसिपल्स हैं 2 to 5. UNCHA हाईलाइटेड इंटरजनरेशनल पैरिटी एंड इक्विटी. प्रिंसिपल 6-7 requires respect of carrying capacity of nature. Principles 8 to 11, it recognizes that economic and social development is essential and environment protection should not jeopardize the future development potential of developing nations. It is very important to understand that. 22 क्या कहता है? Principle 22, it seeks to further develop international law on liability and compensation for pollution. PPP की मैंने बात कर ली थी, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल की भी बात कर दी ऑलरेडी, प्रिंसिपल ऑफ CBDR की भी बात कर ली, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी बात कर दी. ये सारी स्टॉकहोल्म में बात हुई थी, CBDR की इतनी बात नहीं हुई थी वहाँ पे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से शुरू होता है मामला? वो होता है ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन केस से, जो US वर्सेस कनाडा का केस है. पॉल्यूटर पेज एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को रिकग्नाइज़ किया गया था यहाँ पर कि जो पॉल्यूट करेगा वही पे करे, ठीक है. प्रिकॉशनरी हमें रहना पड़ेगा एनवायरनमेंट के लिए, यहाँ पे इस बारे में बात करी गई थी सबसे पहली बार, ठीक है.
ये आप 1938 का केस लिख सकते हैं। देखिए लोगों में तब भी जागरूकता थी, लेकिन जागरूकता से कुछ नहीं होता, इम्प्लीमेंटेशन करनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कैपिटलिज्म के नाम पे फिर इन्होंने इतनी इम्प्लीमेंटेशन की धज्जियाँ उड़ा दी, वो तो आप लोगों को पता ही है। देन इन 1972 UNCHC स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, स्टार्ट ऑफ द ईयर ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ। इट वॉज द फर्स्ट मेजर कॉन्फ्रेंस एज आई सेड। UNEP वॉज एस्टैब्लिश्ड, स्टॉकहोम प्रिंसिपल आया था ट्रेल्स मैटर के बेसिस पे। सॉवरेन राइट ऑफ अ स्टेट टू एक्सप्लॉइट इट्स ओन रिसोर्सेज परसुएंट टू इट्स ओन एनवायरमेंटल पॉलिसी। अब वो ये स्टेट पे बात डाल दी कि स्टेट के लॉज होंगे, उस हिसाब से आपको इन्वायरमेंटल और एक्सप्लॉइट करने अपने रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटेशन इन रिस्पेक्ट टू स्टेट लॉज। Right. Then there came the Brundtland Commission report, which was in respect to our common future. Right. It was in 1987. Right. Then Rio Summit, one of the most important thing. यहाँ पे एजेंडा 21 की बात करी थी, FCCC, CBD और CCD. FCCC, CBD and CCD are three of the most important bodies under the United Nations. CBD is basically on biodiversity. CCD is for combating desertification. Right? So ये सब बहुत ज़रूरी है कि आप समझें। एजेंडा 21 जो था वो ब्रंडटलैंड कमीशन रिपोर्ट पे था, जो मैंने आपको यहाँ दिखाई है। राइट, इसके बेसिस पे था। एंड देन रियो +10 हुई, इन सब में यही बातें चलती रही, +10 +20, फिर से रियो में हुई। देन 2015 में एक मेजर लेजिस्लेशन है जिसको बोलते हैं पेरिस एग्रीमेंट। राइट, देन द UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट issues, certain issues were addressed. Scrutiny in of patterns of production, कि किस तरीके से प्रोडक्शन हो रही है गैसेस की, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस की जो प्रोडक्शन हो रही है उसको लिमिट किस तरीके से करना है, ग्रोइंग यूज़ ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर, वही डेजर्टिफिकेशन की बात होगी CCD में जो बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये 3 बॉडीज़ थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। राइट, सो दैट इज़ वन थिंग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेजर डिस्प्यूट, देखिए जो मैंने आपको डिस्प्यूट बताया ना ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के बीच में, वही है पूरा। नेचुरल रिसोर्सेज पर इकोनॉमिक कॉस्ट, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बर्डन, फाइनेंसिंग एंड टैक्स ट्रांसफर, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एट्रीब्यूटेड टू डेवलप्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज, जो मैंने आपको बताई, जो ग्लोबल नॉर्थ के अंतर्गत आएंगी। मेजर इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, एजेंडा 21, CCC, CBD एंड CCD एंड सस्टेनेबल स्टेटमेंट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोर्सेज क्या क्या है इंटरनेशनल एनवायरमेंट लॉ के, ICJ के स्टैट्यूट के थ्रू ही हमें निकालने हैं। ठीक है, कस्टम्स तो बहुत कम है। ठीक है, ट्रीटीज़ हैं बहुत सारी, जो मैंने आपको बताया, साइट्स की कन्वेंशन है, मार्पोल कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन है ओजोन लेयर की, बेजल कन्वेंशंस है। साइट्स बेसिकली बर्ड्स के ऊपर थी, तो आप इनके एग्जाम्पल लिख देंगे अपने आंसर में तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। न्यू ट्रेंड है कन्वेंशनल एंड प्रोटोकॉल अप्रोच, जो मैंने आपको समझाई। ठीक है, जैसे CBD है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की, उनकी कार्टेजिना और नगोया प्रोटोकॉल है। FCCC की क्योटो और पेरिस प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है चीज़ें, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आया था, पर उसकी आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। कार्बन ट्रेडिंग बेसिकली इज़ इन रिस्पेक्ट कि आप कितने कार्बन एमिट कर रहे हैं, उस तरीके से जितने कार्बन एमिट होंगे, उन एमिटेड कार्बन्स को आप एक फॉर एग्जांपल एक स्टॉक की तरह ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ वन थिंग। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, ट्रेल स्मेल्टर आर्बिट्रेशन, जो मैंने आपको बताया, पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल प्लस प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इज़ देयर। पल्प मिल्स का भी एक केस था, अर्जेंटीना वर्सेस यूरुग्वे। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को यहाँ पे भी एज अ GPL रिकग्नाइज किया था। जुडिशल मीन्स भी है, सब्सिडियरी ही है वो एक तरीके से। गैप चिकोवो एक केस था जिसमें ICJ रिलाइड ऑन इट्स ओन डिसीजन इन द एडवाइजरी ओपिनियन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स का भी अगर ज़्यादा यूज़ होगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। न्यूक्लियर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हार्म करता है एनवायरनमेंट को, प्लस इंसानों को भी। ठीक है, सॉफ्ट लॉ किस तरीके से क्रिएट होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर नॉट लीगली बाइंडिंग एंड ओनली आर डिक्लेरेटरी इन नेचर, सच एज रियो प्रिंसिपल्स, स्टॉकहोम प्रिंसिपल्स, दे आर ओनली डिक्लेरेटरी। राइट, आप वो बाइंडिंग बना ही नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेरिस एग्रीमेंट, जब भी ट्रम्प या कोई रिपब्लिकन सरकार आती है तो वो पेरिस एग्रीमेंट से इस्तीफा दे देते हैं, वो अपने बाइंडिंग चीज़ उससे वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा ना चलेगा इन्वायरमेंटल लॉ। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं।
रेलेवेंस ऑफ सॉफ्ट लॉ क्या क्या है, लेकिन सॉफ्ट लॉ से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, कम से कम अवेयरनेस तो क्रिएट हो रही है, ठीक है, कॉमन पॉलिटिकल कमिटमेंट्स के बारे में पता चल रहा है, पोटेंशियल के बारे में पता चल रहा है कि किस तरीके से वो इन द फोर्सिएबल फ्यूचर हार्ड लॉ बन सकता है. इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ट्रीटी मेकिंग प्रोसेस. ऑफ कोर्स अगर सॉफ्ट लॉ ही नहीं होगा तो ट्रीटी कैसे बनेगी, हार्ड लॉ कैसे बनाया जाएगा. कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का भी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मेजरली ये ब्रंडटलैंड रिपोर्ट थी, उसके अंदर सबसे पहले इसको डिफाइन किया गया था ढंग से. मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स. ठीक है, अपनी नीड्स तो हमें यू नो, मीटिंग को मैं हिंदी नहीं सोच पा रहा हूँ, इफ़ यू हैव टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, हमें आज की अपेक्षाओं से मुलाकात करनी है और हमें आगे आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके बारे में भी सोचना है. इसका मतलब था स्पेसिफिकली इन रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट, दैट इज़ रिटन इन ब्रंडटलैंड रिपोर्ट. With the adoption of Rio Principle, sustainable development has become a leading concept of international environment law. गापचिकोव में इसके बारे में बात करी गई थी. रियो कन्वेंशन के 3 प्रिंसिपल्स 3, 4 एंड 27 में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई कि इन्वायरमेंट नीड्स हमें फ्यूचर की देखनी है. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इज इंटीग्रल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. कॉपरेशन फॉर फर्दर डेवलपमेंट इन IL इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है. स्टेट्स आर अकाउंटेबल फॉर द ब्रीचेज ऑफ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ एंड इंजर्ड स्टेट कैन मेंटेन a claim against a violating state either by diplomatic action, right, or through international mechanism. But sanction का इतना concept आ नहीं रहा है. Obligation absolute भी हो सकती है to prevent pollution and states are thus liable for the effects of pollution regardless of fault. मतलब जो state pollution करेगा उसकी fault मानी जाएगी. ट्रेल्समेंटर बता दिया. कॉर्फू चैनल का केस मैंने आपको पहले बताया भी है. इट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी स्टेट नॉट टू अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड फॉर एक्ट्स कॉन्ट्ररी टू द राइट्स ऑफ अदर स्टेट्स. मैंने आपको पहले भी 1-2 क्लासेस में समझाया. कॉर्फू चैनल में ये सब बातें करी गई है. NW का एडवाइजरी ओपिनियन भी है. जनरल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स इज टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज विद इन देयर ज्यूरिडिक्शन एंड कंट्रोल रिस्पेक्ट ऑफ द एनवायरमेंट ऑफ अदर स्टेट्स एट द सेम टाइम एज वेल. इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ कॉर्पस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. ट्रीटीज़ हैं. स्पेसिफिक स्कोप मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, एरियल हर्बिसाइड का भी एक स्प्रेइंग केस है, एक्वाडोर वर्सेस कोलंबिया का. ट्रू कंट्रीज रीच सेटलमेंट बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल पेस प्रिंसिपल. केस वाज विड्रॉन फ्रॉम द ICJ. सिंपल है, मतलब कुछ समझाने का है नहीं. क्लाइमेट चेंज की कौन सी कन्वेंशन है. वियना कन्वेंशन है ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है. किगाली अमेंडमेंट है. ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल है. पेरिस एग्रीमेंट है. गोल 1.5C एंड टारगेट ऑफ 2C है. देखिए, मैं आपको बताता हूँ 1.5C एंड 2C का कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, 1.5C एंड 2C का बेसिकली यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है 1.5C और 2C. इट इज़ इन रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल एरा कि इन जो पेरिस एग्रीमेंट है उससे पहले जो क्योटो प्रोटोकॉल भी थी, उसमें भी यही कहा गया है कि इफ़ वी वांट टू सस्टेन आवर फ्यूचर इट इज़ रिक्वायर्ड कि जो पोल्यूशन है वो प्री इंडस्ट्रियल रेवर से हम 2x या 1.5x कम लेके जाएं. प्री इंडस्ट्रियल रेवर से हम 2 या 1.5x कम लेके जाएं. दैट इज़ द कॉन्सेप्ट. प्री इंडस्ट्रियल मतलब प्री 1950 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल में भी PTBT मैंने आपको पिछली क्लास में समझाई है. IAEA का कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. 1957 में बनी थी ताकि एटॉमिक एनर्जी का यूज़ ढंग से हो. CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी जो है उसके बारे में बात करी थी हमने. मरीन के लिए अनक्लॉस है. मार्पोल कन्वेंशन है. लंदन डंपिंग कन्वेंशन भी है कि एनवायरनमेंट का हम ढंग से यूज़ करें. हांगकॉन्ग की कन्वेंशन है इन रिस्पेक्ट टू शिप ब्रेकिंग. मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस में भी इसके बारे में एक चीज़ समझाई है. क्या थी अब आप वो कमेंट्स में लिखेंगे अगर आपने देखा हो तो. एक रीसेंट डेवलपमेंट भी है इसके रिलेशन में. आउटर स्पेस के लिए UN USA है. अग्रीमेंट गवर्निंग एक्टिविटीज़ ऑफ स्टेट्स एंड मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ भी है कि किस तरीके से हमें बाहर की जो
क्या कहते हैं, बाहर भी नहीं बोलना चाहिए, स्पेस में जितना भी पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, सैटेलाइट्स हो रही हैं, उसको हम किस तरीके से कम करेंगे. ठीक है. सो दिस इज़ इट फॉर द एनवायरमेंट लॉ क्लास. आई होप यू लाइक्ड इट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू.